top of the hour, let's get you the updates currently as far as all of Delhiites that have been facing every single day. That's the worsening air quality. And that has been mentioned as far as the government finally now announcing curbs to help control air pollution. This includes primary schools that have been shut till the 10th of November. And around 50% of the Delhi government employees will be working from home, while private offices have been advised to follow suit. A plan that will also be put in place for staggered timings for markets and offices as well. And there may be a comeback of the odd even scheme when it comes to the private vehicles that are plying on Delhi roads. दिल्ली सरकार के अंदर जो वर्कफोर्स है 50% वर्क फ्रॉम होम करेगी। जो प्राइवेट दफ्तर हैं उनके लिए भी हम एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं कि वो भी इसको फॉलो करें। जितने विभाग हैं जो अभी तक वाटर स्प्रिंकलिंग का काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन बैन को मॉनिटर कर रहे हैं, उन सारे कामों को डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करने का आप सिस्टम बनाया गया है, उसको निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी दिल्ली के अंदर जो प्राइमरी तक के स्कूल हैं उसको बंद करने का और उसके ऊपर के कक्षाओं के आउटडोर एक्टिविटीज़ को बंद करने की घोषणा ऑलरेडी कर दी थी। उसके लिए भी डायरेक्शन जारी किया जा रहा है। पिछली बार पर्यावरण बसें जब आई थी तब ऑड इवन की चर्चा हो रही थी कि गाड़ियों की कमी न हो पर्यावरण बसों की, तो क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं ऑड इवन? जैसा मुख्यमंत्री जी ने आज बताया कि उसको लेकर के सरकार विचार कर रही है और अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो उसी तरह से निर्णय। Now, while the Aam Aadmi Party government is assured of a solution to the stubble burning problem, a skeptical BJP was quick to point out that such promises have been made several times in the past without any results to show them now. The BJP also pointed out that how instead of fixing the issues with its own implementation, the Aam Aadmi Party is busy shifting goalposts. 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने 1350 करोड़ रुपए क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए पंजाब सरकार को और अन्य सरकारों को दिया है। उसमें से 212 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने खर्च नहीं किए। इस वर्ष मोदी जी की सरकार ने पंजाब को पराली मैनेजमेंट के लिए 280 करोड़ दिए हैं। 492 करोड़ रुपए उसका कुछ नहीं किया गया है, अगले साल करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। किसान जिम्मेदार नहीं है, किसानों के लिए उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, इंसेंटिव नहीं दिया। हम पैसा दे रहे हैं किसानों को, अच्छा मूल्य देने की बात भी कर रहे हैं। शिक्षा लेनी है तो हरियाणा सरकार की जो उनसे ले लें, और किसान मजबूर है कि उसको अगली फसल बोनी है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करना सरकार का काम है। फेल किसान की गलती नहीं है। Mr. Kejriwal is now trying to shift the goalpost. Before they came to power in Punjab, Aam Aadmi Party had all the solutions for Punjab's parali, which they consider, not us, as the main cause of Delhi's pollution. Mr. Kejriwal's statements are on record. Are they anti-farmer statements? He had solutions like the biodecomposer, cutting of the parali, selling the parali to factories. Today, he says 6 months is not enough, give us more time. Mr. Kejriwal is responsible for it. You should ask him what he's planning to do. He bought a lot of equipment, spent a lot of money. I said Mr. Kejriwal should answer. Issue of environmental pollution solution does not require rocket science. Money has been made available, equipment was bought. People said they will do some things, they didn't do it. I think the public will hold them accountable. Well, the blame game continues. Both the Aam Aadmi Party chief ministers, however, of Delhi and Punjab admitted that there was a certain problem there and it needs to be addressed, especially when it comes to the state of Punjab, where rampant incidents of stubble burning that has been reported. But one also wonders, as far as the Aam Aadmi Party chief stubble burning is concerned, when he was not in power in the state of Punjab, and today when the party is in Punjab, the entire narrative seems to have changed. पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? पराली आज लायबिलिटी बनी हुई है, ये बहुत बड़ा एसेट है, ये सोना बन सकती है पराली। पराली से बिजली बनती है, पराली से कोयला बनता है, पराली से गत्ता बनता है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है
उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है। So the question that is now being asked is the game of smoke and mirrors killing the Aam Aadmi when it comes to why are we made to suffer? It is because of the health and the business and the education, since the anti-pollution curbs in Delhi would have little impact. So as the farm riots continue to rage on in Punjab, that contributes to over 30% of the pollution in the capital. Until the time the problem is not addressed, now these curbs that have been announced by the Aam Aadmi Party government in Delhi may not work. उससे कोई समस्या नहीं हल हो सकती। ये दुकानें बंद होने से या स्कूल बंद हो, ये समस्या नहीं होती। समस्या का हल ढूंढो ना, हल कैसे निकलेगा ये? तो पराली वगैरह जो चल रहा है वो बंद होना चाहिए। पराली बंद हो तो बिल्कुल होना चाहिए। जो प्रदूषण करता है उसको तो बंद होना चाहिए बिल्कुल। हमारा दुकान बंद होने से एक समस्या नहीं निकल सकता, बट क्या आप गवर्नमेंट को पूछिए आप क्या कर रहे हैं। तो आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही है? जैसे अब अगर दुकानें बंद हो जाएंगी, अभी जो पोल्यूशन दिख रहा है हमें वातावरण में, किस तरह से दिक्कतें आएगी? हमें दिक्कत तो आ ही रहा है ऑलरेडी। हमारे दुकान में हम कहाँ से खर्चा चलाएंगे? नहीं, वे अगर तो दुकान बंद कर देंगे तो वे कहाँ से कमाएंगे? उनके भी बच्चे। अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अपनी लोकेशन जरा बताइएगा। और कल का दिन और आज के दिन में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली की हवा अब बद से बदतर हो जाती है। देखिए, बिल्कुल ये डीएनडी है, फ्लाईओवर है जो दिल्ली नोएडा को जोड़ती है। नोएडा से अगर आप दिल्ली आएंगे या दिल्ली से नोएडा जाएंगे तो यही वो पुल है, यही वो एक्सप्रेसवे जो आपको जोड़ेगी। यहाँ के हालात देखिए, आपको जो गाड़ियां आ रही हैं दिल्ली से नोएडा की तरफ, उनके सारे हेडलाइट्स आपको जले हुए दिखेंगे। आप आलम ये है यहाँ पे कि लोग इतने परेशान हैं, विजिबिलिटी इतनी कम है, प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि लोग अब जो है यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान है। अपनी गाड़ियों के हेडलाइट जला के वो आ रहे हैं कि गाड़ियां आपस में कोलाइड ना करें। इसके साथ साथ अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूं तो वो लगातार बढ़ रहा है। अभी जब मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 470 के पास है, जो कि जो है सीवियर कैटेगरी में आता है। तो आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आलम है यहाँ का, कितने लोग परेशान हैं, प्रदूषण का क्या स्तर है। दूसरी एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आप देखिए, मैं राइट साइड में देखेंगे धुंध का जो चादर है उसमें ये पूरा का पूरा डीएनडी फ्लाईओवर आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुहासा छाया हुआ है, ऐसा लगता है किसी ने आग जला दी है। लेकिन ये आग, ये धुआं पंजाब की देन है, ये आग, ये धुआं उन सरकारों की देन है जहां से पराली के जो अंश है वो दिल्ली एनसीआर में घुस रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मुख्यमंत्री दिल्ली के गुजरात प्रवास में है, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली के लोगों को गैस चैम्बर में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आप गाड़ियां देखिए, सबके हेडलाइट जले हुए हैं। ये अपने आप में इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। अभिषेक, वही सवाल उठता है कि अब जब हालात इतने खराब हो जा रहे हैं तो अब जाके स्कूल बंद करना, क्या ये देरी से डिसीजन नहीं लिया गया है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से? बताया जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि शायद ऑड इवन स्कीम वापस लागू हो, लेकिन क्या ये असरदार होगा जब तक पराली बंद नहीं होगी, जलनी बंद नहीं होगी पंजाब में और बाकी सारे शहरों में भी? धन्यवाद आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट हरियाणा एज वेल, बिकॉज दैट हैज बीन ऑल्दो वन ऑफ द अदर स्टेट्स दैट हैज बीन पॉइंटेड बाय द आम आदमी पार्टी चीफ एज टू व्हाई नॉट द अदर स्टेट्स दैट आर रूल्ड बाय द बीजेपी also held accountable.